علاقائی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز اہم خبر کے ساتھ کہ جہلم کے خوبصورت تاریخی اور پرفضا مقام ٹلہ جوگیاں کی طرف جانے والے راستے کو بہتر کرنے کا کام شروع ہو گیا۔ آج نیوز نے 12 جنوری کو ٹلہ جوگیاں کی رپورٹ نشر کی تھی۔ یہاں 24 کلومیٹر تک جیپ ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے شہباز بٹ سے۔ شہباز بتائیے گا، آج نیوز سے خبر پر ایکشن ہوا ہے، یہاں پر کیا کیا کام ہوگا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹلہ جوگیاں جہلم کا خوبصورت تاریخی مقام ہے جو کبھی ہندوؤں کی عبادت گاہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں پہ جوگیوں کی کلاسز ہوتی تھی۔ یہ مقام سطح سمندر سے 3242 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہاں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک نے بھی چلہ کاٹا تھا۔ کچھ باقیات اور تعمیرات یہاں پر موجود ہیں۔ ہندو اور سکھ یاتریوں کے علاوہ اندرون اور بیرون ممالک سے بھی لوگ اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ راستے ناہموار، دشوار گزار اور پتھریلے ہیں۔ تو آج نیوز نے 12 جنوری کو اس کی تفصیلی رپورٹ نشر کی تھی جس پر ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز اختر نے نوٹس لیا ہے، اور اب جو ہے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے پتھریلے راستوں اور جو دشوار گزار راستے تھے ان کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ 24 کلومیٹر تک یہ جیپ ٹریک بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نوائی علاقہ جو بیٹ ہے وہاں سے ٹلہ جوگیاں تک 4 کلومیٹر کا ہائکنگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹریک پر راستے میں جو ہے وہ ریسٹ کے لیے بینچز بھی بنائے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ یہ راستہ جب ہموار ہوگا تو یہاں آنے والے لوگوں کو مشکلات کم ہوگی، بلکہ یہ مقام جو ہے سیاحوں کی توجہ کا بھی مرکز بنے گا۔ ٹھیک ہے شہباز بٹ، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی کمشنر جہلم راؤ پرویز نے۔ بہت شکریہ پرویز صاحب آج اس کو وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلی بار انتظامیہ یہاں کوئی بڑا اقدام کرنے جا رہی ہے، ذرا اس کی تفصیلات ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ جی سب سے پہلے تو میں آج نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ نہ صرف مسائل کو اجاگر کرتے ہیں اور جب ہم کوئی اچھا سٹیپ لیتے ہیں تو اس پہ بھی وہ ستائش بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ روہتاس فورٹ سے ٹلہ جوگیاں تک جیپیبل ٹریک ہم بنانے جا رہے ہیں جس کی ٹوٹل لاگت ہے وہ 35 ملین روپیز ہے، اور اس میں سے 11 کلومیٹر سے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ ADB فنڈنگ سے یہ ایک ٹورزم کے انیشیٹو کے لیے ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے، اور یہ بالکل پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے عین مطابق ہم اس کے علاوہ بھی ٹورزم پہ کئی ایک کام کر رہے ہیں، جن میں بھیٹ سے ٹلہ جوگیاں تک 2.5 کلومیٹر جو مسنگ لنک تھا ہائکنگ ٹریک کا وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح وہاں پہ 4 کلومیٹر سے زیادہ کا ہائکنگ ٹریک ہوگا جہاں پہ لوگ اپنی جو ہے وہ تباہ آزمائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ اور ایسے انیشیٹوز بھی لیے ہیں جس میں گورنمنٹ کا یا پبلک سیکٹر سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہے، بلکہ انٹرنیشنل NGOز اور فلنتھراپک ایکٹیویٹی کے ذریعے ہم فنڈ جنریٹ کر کے وہ کام کروا رہے ہیں۔ ان میں گردوارہ چوا صاحب ہے جس کی رینوویشن اور پریزرویشن کا کام جاری ہے، اور اس کے بعد ایک جنم استھان ماتا کور صاحب جی ہے روہتاس فورٹ کے اندر، اس کی بھی رینوویشن اور پریزرویشن کا کام شروع ہونے والا ہے۔ اس وقت اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ پریمسز کی ایجوکیشن کے لیے اس کی اس وقت پرائس اسیسمنٹ ہم کر کے ان کو دیں گے جو فلنتھراپسٹ ہیں، اور وہ ان لوگوں کو پے کر کے اس پریمسز کو ویکیٹ کروائیں گے۔ اس کے علاوہ سہیل گیٹ ریپلیکا ایک بننے جا رہا ہے وہاں GT روڈ کے اوپر جو راستہ انٹرنس ہے روہتاس فورٹ کی وہاں پہ، تو اس کی فنشنگ کا کام شروع ہونے والا ہے، اور وہ بھی فلنتھراپک ایکٹیویٹی کے ذریعے ہوگا۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ شہباز بٹ آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے پرویز صاحب کے کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ راستے ہموار ہو رہے ہیں، کام ہو رہا ہے اس پہ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، تو جو اوپر تاریخی مقامات ہیں، کچھ باقیات ہیں جوگیوں کی، ہندوؤں کی اور سکھوں کی، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے گئے ہیں، کوئی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جی پرویز صاحب اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹلہ جوگیاں جو ہے یہ بہت قدیم یوگا کی درسگاہ ہے۔ یہاں سے ایکچولی یوگا نے جنم لیا تھا، تو وہاں پہ پورا ایک کمپلیکس موجود ہے، کچھ اسٹرکچرز ہیں جن کی رینوویشن اور پرزرویشن کا کام بھی ہم تھرو فلنتھراپک ایکٹیویٹی کروانے جا رہے ہیں، جس میں وہاں واٹر سپلائی، الیکٹریفیکیشن اور کنسٹرکشن آف ٹورسٹ ہاسٹل اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہندو اور سکھ زائرین کے لیے مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی اس کے علاوہ ایک گردوارہ بھائی کرم سنگھ ہے ہمارے دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر واقع ہے،
उसकी रेनोवेशन और प्रिजर्वेशन के लिए भी हमने एक फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी के जरिए एक इंटरनेशनल एनजीओ से रब्ता किया है और वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया है। अब वो उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं और उसके अलावा उस दरिया झेलम के किनारा वो एक बहुत खूबसूरत जगह है और उसको हम ब्यूटिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे फूड स्ट्रीट एस्टेब्लिश की जाएगी और रिवर बैंक के ऊपर एक रोड एक्सेस दी जाएगी उस गुरुद्वारा को। इसके अलावा उस पे एक डंपिंग साइट है जो बहुत देरीना है, उसको हम रिलोकेट करने के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको भी रिलोकेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा रिवर बैंक जो है वो खूबसूरत हो जाएगा और सयाहों के लिए एक देखने की जगह होगी और वहाँ पे फूड स्ट्रीट हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव परवेज अख्तर, डिप्टी कमिश्नर जेलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्ट हमें तमाम तफसीलात से आगाह किए रहे थे। आपका भी है शुक्रिया। अफसोसनाक खबर दें कोयटा से आपको, जहां कचहरी के करीब धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। धमाका एक गाड़ी के करीब हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक वाकया है जो कि कोयटा में पेश आया है। ये वाकया जहां कचहरी के करीब ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। धमाका एक गाड़ी के करीब हुआ है। इस तमाम तफसीलात से हम राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने नुमाइंदे से। आपको अपडेट कर रहे हैं कोयटा से, जहां पर कचहरी के करीब ये धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। धमाका एक गाड़ी के करीब हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जहां कचहरी के करीब धमाका हुआ है जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सोहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये आपसे कुछ देर कबल कचहरी कमिश्नर ऑफिस के करीब एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद इसमें जख्मी हो गए। लाशों को और जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ धमाके के फौरन बाद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम मामले को तलब कर लिया और तिब्बी हालात भी तलब कर लिए गए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि ये एक मजहबी जमात की रैली थी कश्मीर डे के हवाले से। जो ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची कमिश्नर ऑफिस के करीब तो मजदा ट्रक के करीब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद और 3 जख्मी हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल अहमद। खबर दें आपको कि रायवन रोड पर डैम्पर और वैगन में तसादुम के नतीजे में 1 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आज अफसोसनाक वाक़या जो है वो अराइया मोड़ पे पेश आया है, जहाँ पे डंपर, तेज रफ्तार डंपर जो है वो मुसाफिर वैन IS से टकरा गया है, जिसकी वजह से एक शख्स जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, विशाल नाम उसका बताया जा रहा है, उसकी मौके पे जो है वो हलाकत हुई है। जबकि 6 अफराद जो है वो जख्मी है जिनको रेस्क्यू टीम ने मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे ये मजीद बताता चलूँ कि रायवन रोड पे हादसा की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक कवानीन जो नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी सुस्ती और गफलत जो है वो देखी जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफर जो है वो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार हो रहा है और गैर महफूज सफर है। मुसाफिरों के साथ आए रोज जो है वो हादसा के वाक़यात पेश आ रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया समेत पुलिस और दीगर अदारे जो है उनकी सुस्ती जो है उसको अभी जो है ना दूर नहीं किया जा सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नईम शेख। तहसील मियां चुनू में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई है। हादसे में 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ गादी से। अशरफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या, ये अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के नवाही इलाका 117-15 के करीब उस वक्त पेश आया जब 96-15 जंडियाली बंगला के रहायशी ईद मोहम्मद और रजिया बीबी अपनी फैमिली के साथ कार पर सवार होकर अपने ससुराल मोसनवाल जा रहे थे कि अचानक गाड़ी का टायर बरस्ट हुआ और तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि मियाँ बीवी भी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। ताम रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जैसे ही इस अलमनाक हादसा की खबर इनके हवाई इलाका में पहुंची तो इलाका में कोहराम मच गया
और इस अफसोसनाक वाक़या पर हर आंख अशबार थी। जी ठीक है। खानेवाल तहसील मियां चन्नू में कार दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक। तफसीलात देते आशफ गादी, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर बलूचिस्तान भर में रैलियां निकाली गई हैं। कोयटा में भी अवाम ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद खालिद। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कोयटा और गिरदनवा के इलाकों में सारा दिन रैलियों, मुजाहरों और सेमिनार्स का सिलसिला जारी रहा। तो आज का दिन यकीनी तौर पे ये वही दिन है जहां आप सब ने अपनी इस यकजहती को सामने रखते हुए बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला में मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में लोगों ने अपनी मोहब्बत को कश्मीरी भाइयों के साथ जो आज शो किया है, ये उस बात की एक ज़मानत है कि हम इस जद्दोजहद में हमेशा से रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा तक रहेंगे। बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से जो कश्मीरी भाइयों की हिमायत में रैलियां निकल रही हैं, ये इस चीज़ का सबूत है कि बलूचिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कोयटा के लोगों का सड़कों पे आकर जज्बात का इजहार इस बात की गमाजी है कि कश्मीर के इशू पर कौम एक प्लेटफार्म पर मुतहद खड़ी है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैलियों का एहतमाम किया गया। शुरका भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। बन्नू में ताजिर बरादरी और जमात इस्लामी समेत दीगर ने रैलियां निकाली। बाजोड़ में भी खार बाजार चौक से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। DI खान में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में GPO चौक से रैली निकाली। शुरका ने कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोहाट में भी कश्मीरी भाइयों से यकजहती के लिए रैलियां और तकारीब मुनक्किद हुई। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की सदाओं से गूंजती रही। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कश्मीरी अवाम के साथ इस वक्त इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। शुरका ने आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सक्खर में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरियों ने रैली निकाली और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। खैरपुर में सिविक सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में कश्मीरी भाइयों के हक में नारे लगाए गए। ठट्ठा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए DC ऑफिस से पब्लिक पार्क मकली तक रैली का इनेकाद किया गया। बदीन में भी कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर, SSP और रेंजर अफसरान और एहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मरकजी रैली में शरीक हुए। सांगड़ और मीरपुर खास, थरपारकर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बंद करवाने का मुतालबा कर दिया। यौम यकजहती कश्मीर पर कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। ड्रीम वर्ल्ड ने मैदान मार लिया। कश्मीर डे की मुनासबत से कराची के अल नादिल बुरहानी ग्राउंड पर खेले गए स्मॉल साइडेड फुटबॉल इवेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ड्रीम वर्ल्ड और लूसर्स क्लब ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हतमी टाकरे में ड्रीम वर्ल्ड ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेट कर टाइटल अपने नाम कर लिया। टारगेरियंस यूनाइटेड के हम्माद सम्मू को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने 3 गोल स्कोर किए। आखिर में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए आज न्यूज़। खबर दें कि वजीराबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। रैलियों और सेमिनार्स का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद मुजफ्फर जैदी से। मुल्क भर की तरह वजीराबाद में भी यौम कश्मीर भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से तकारीब और सेमिनार मुनक्किद किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त सुन्नी तहरीक की जानिब से निकाली जाने वाली एक रैली में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम शिरकत से पूछते हैं कि वो आज के दिन की मुनासबत से क्या बात करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो अपने सरों पे कफन बांध कर इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब ये वक्त के हुक्मरान ये जहाद का ऐलान करें, ये हमारी रसाई बारूद करें,
तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे पाकिस्तान की ये अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, ये नौजवान, ये बूढ़ा, ये मजलूम कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती करने के लिए ये कैसे वो मैदान में उतरते हैं। तो यही कहना था कि कश्मीर मीडिया की जानिब से ढाए जाने वाले मुजालिम का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। कसूर से खबर दें कि कसूर में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहम्मद इमरान फैजी से। 5 फरवरी इजहार यकजहती कश्मीर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। पाकिस्तान भर में रैलियां, जलसे, जुलूस निकाले जा रहे हैं। अगर कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी जगह जगह जलसे और रैलियों का इनकाद किया जा रहा है। कसूर में मेन जो जलसा है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आसिया गुल डिप्टी कमिश्नर अपनी क़यादत में निकाल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से लेकर कश्मीर चौक तक ये जलसा निकाला गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के अलावा आवाम की बड़ी तादाद में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ ये जुलूस में शिरकत की है। ये जुलूस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बरामद होकर कश्मीर चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कमोकी में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रैली में सिविल सोसाइटी और दीगर सरकारी इदारों ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शफीक मुगल से। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कामोगी में भी यौम यकजहती कश्मीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली जा रही हैं, तकरीबात और सेमिनार जो है वो मुनक्कद किए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि सरकारी तौर पर जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोगी की तरफ से रैली का इनकाद किया गया। रैली कॉरपोरेशन हॉल से शुरू होकर GT रोड पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई है। रैली में 1122 पुलिस अफसरान, महकमा सेहत, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, इंतजामी अफसरान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की। रैली के शुरुका का एक ही नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शाह है। कश्मीर की आज़ादी तक वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे और उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि कश्मीर का मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। खबर दें आपको कि घोटकी में वडेरे ने एक शख्स की मोटरसाइकिल को आग लगा दी और मोटरसाइकिल सवार को बाद में अगवा कर लिया। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नसीर साकिब से। नसीर साकिब, मामला क्या है बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मिरपुर मात्र थाने के हदूद में गांव गुलाम हैदर सुमरो के एक रहायशी हैं नौजवान गुलाम यासीन सुमरो। वो उनपे कुछ अर्सा पहले भी इनका आपस में कोई रिश्तेदारी का तनाजा था। तो एक 72 वडेरे हैं इस्लाम खान महर, उन्होंने एक जो फरीक था उनकी साइड लेते हुए वो जैसे वो गांव से शहर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने बासर ने गाड़ी आगे देखकर उसको रोका और उस पर पहले तो बेईमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद जो उसकी बाइक थी उसको आग लगा दी और उसके बाद जब ये इत्तला उनके वर्षा को मिली तो वो वहाँ पे आए। कौमी शाहराह पर उन्होंने धरना दिया। जो सिंध और पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है उसको मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद जो है सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां थी वो खड़ी हो गई। उस मौके पर जो मुजाहिरीन थे उनका कहना था कि ये जो बात कर रहे हैं इससे पहले भी उन्होंने धमकियां दी हैं और आए रोज कोई न कोई बहाना बनाकर हमारे ऊपर तशद्दुद करता है। तो आज ने एक शख्स की मोटरसाइकिल को आग लगा दी और मोटरसाइकिल सवार को बाद में अगवा कर लिया। तफसीलात देते नसीर साकिब, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए हिंदू बरादरी की तरफ से ठट्टा से मकली तक रैली निकाली गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमर लाल से। कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए ये मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज हिंदू बरादरी की तरफ से भी कश्मीरी की हिमायत में रैली निकाली गई है ठट्टा से मकली तक, जहां पर फलक शगा नारे भी लगाए जा रहे हैं कि भारत मुसलसल दहशतगर्दी के राह कश्मीर में हिंदू बरादरी भी कश्मीरी की हिमायत करती है और कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जंग जारी रही। आइए मेरे साथ हिंदू बरादरी के रहनुमा मौजूद है, इनसे बात करते। की तरफ से जो रैली निकाली गई है वो एक सख्त एहतियात किया है मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार को हम बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। कश्मीरी आवाम के खिलाफ जो मजालिम मोदी सरकार या हिंदुस्तान मुसलसल कर रहा है और ये UN की 2 मरतबा रेजोल्यूशन भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कोई UN फोर्सेज वहाँ नहीं गई। हिंदू बरादरी की रहनुमा इनका यही कहना है कश्मीर हमारा हिस्सा है और कश्मीरी हमारे भाई है। इनकी आज़ादी तक हम भी उनकी जदोजहद में शामिल हैं। खबरें आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज़।